خوش ہیں؟ تو پھر اپنے دونوں ہاتھ روح القدس کو دکھائیں گے، روح القدس کے لیے زوردار تالیاں کریں گے۔ کتاب مقدس کھولنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ تیرا نام کیا ہے۔ اس سے بیشتر کہ ہم کلام خداوندی کی طرف آئیں، چند لمحات کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خداوند جی، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میری عقل ناقص ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، لیکن آج صبح مجھے سکھائے گا تو میں تیرے لوگوں کو سکھا دوں گا۔ اے خداوند کی پاک روح، اس کتاب کی مہر کو کھول اور اپنے کلام کو اپنے بندہ پر نازل فرما۔ اے میرے خدا، اے میرے پیارے باپ، اے میرے رب، تیری آگے منت کرتا ہوں میرے خداوند، اپنے کلام کی سچائیوں کو مجھ پہ بہنے دے میرے خدا۔ اے میرے خداوند، تیری آگے منت کرتا ہوں، اپنے خادم کو کلام کے وسیلہ سے گہرے میں لے کے جا میرے خداوند، گہرے طور پر استعمال کرنا میرے خدا۔ تیرا شکر یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ آئیے میرے عزیزو، جن کے پاس کلام خداوندی ہے، ہم اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے مقدس مرکز کی انجیل، مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی نام ہی ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب نام ہی ہے کلام خداوندی میں جو مرقوم ہے۔ پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سمجھا جانا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب گراسینیوں کے علاقہ میں گئے تو خداوند یسوع مسیح کے ہم بھائی، اس کے چیلے، اس کے شاگرد اس کے ساتھ تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے تو خداوند یسوع مسیح جب جھیل پر سے اترے تو ایک آدمی اچانک سے ان کے درمیان ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کے اندر بدروحوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، ایک بہت بڑا لشکر تھا اس آدمی کے اندر۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے جب اس نے بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھا، جب اس نے خداوندوں کے خدا کو دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ سامنے کوئی شخصیت کھڑی ہے جس کی بادشاہت بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں گر پڑا، اس نے سجدہ کیا، اس نے آ کر سجدہ کیا۔ کتاب اگر اوپر سے ہم دیکھیں، اگر ہم اوپر سے اس ابواب کو دیکھتے ہیں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پتھروں سے قائد کر رہا ہے، اپنے تائیں وہ اپنے آپ کو پتھروں سے مار رہا ہے، اپنے آپ کو پتھروں سے مار رہا ہے۔ یہ آدمی کیوں مار رہا ہے؟ بیسکلی ابلیس شروع سے ہی انسان کی شبیہ کا
दुश्मन है। इब्लीस शुरू से ही इंसान की छवि का दुश्मन है। उसकी सूरत का ये दुश्मन है। शुरू से ही, बागे आदम से ही इब्लीस इंसान का दुश्मन रहा है। इब्लीस अब इसके अंदर है। ये अपनी सल्तनत को बर्बाद करना नहीं चाहता। बेशकली ये खुदा की छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इब्लीस इसके अंदर है, लश्कर इसके अंदर है। बेशकली ये खुदा की छवि को खराब करना चाहता है। हम किसकी छवि पर हैं? दसो सही, खुदा की। हम खुदा की छवि पर हैं। खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया है। और ये आदमी जिसके अंदर बदलुओं का बहुत बड़ा लश्कर है, ये किसकी छवि पर है? नहीं पता। ये भी खुदा की छवि पर है। अब बदलुओं का लश्कर इसके अंदर है। और शरीर खुदा की छवि को खराब करना चाहता है। पत्थरों से ये आदमी अपने आप को घायल कर रहा है। पत्थरों से ये अपने आप को मार रहा है। लोगों ने इसे जंजीरों के साथ बांधा है, जंजीरों के साथ बांधा है, बेड़ियों के साथ बांधा है। लेकिन ये बेड़िए तड़वा देता था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलुओं का लश्कर था। अब मेरा यीशु जब गरासीनियों के इलाका में दाखिल हुआ तो ये उसके सामने आ गया। खुदा यीशु मसीह के ये आदमी सामने अब आ चुका है। गरासीनियों से जब खुदा यीशु मसीह झील पर से उतरे हैं, और ये आदमी कब्रों में रहा करता था। अब देखें कि जब इब्लीस इंसान के अंदर आ जाता है तो उसके हालात वो किस तरह के कर देता है। जिंदा आदमी को कब्रों के अंदर ले गया। इब्लीस उसे मारना चाहता है। किताब मुकद्दस में अगर तकवीन की किताब, पैदाइश की किताब का मुताला करें तो खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया है। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में कलाम की मुनादी कर रहे थे, कलाम की तबलीग कर रहे थे, कलाम की बुशारत कर रहे थे। और फकीरों और फरीसियों ने ज़माने के ताल्लुक से मैं खुदा की छवि की बात कर रहा हूँ, खुदा की छवि की मैं बात कर रहा हूँ। फकीरों और फरीसियों ने ज़माने के ताल्लुक से खुदा यीशु मसीह से एक सवाल किया कि देख, तू उस्ताद है, हम जानते हैं, लेकिन हमें जरा ये बता कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। खुदा ने कहा एक सिक्का लाया जाए, एक कॉइन मेरे पास लाया जाए, एक करेंसी जो इस मुल्क की करेंसी है उसे मुझे दिया जाए, उस करेंसी को मेरे पास लाया जाए। मुझे एक सिक्का चाहिए। जब लोगों ने सिक्का खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंपा तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सिक्के पर किसकी छवि बनी है। उन्होंने कहा कि कैसर की। खुदावंद ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो। तुम मेरी छवि पर हो, तुम मेरे पीछे आ जाओ, तुम मेरे पीछे आ जाओ। अब कब्रों के अंदर ये आदमी बड़ा है, कब्रों के अंदर ये चिल्लाता है, रोता है, कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है। लोग इसे जंजीरों से बांध कर चले जाते हैं, लेकिन जंजीरें फिर ये तड़वा लेता है, क्योंकि इसके अंदर लश्कर है।
लश्कर है बदरूहों का। अब खुदावंद यीशु मसीह जब गरासीनियों के इलाका में दाखिल हुए तो ये आदमी अचानक से सामने आकर झुक गया है यीशु के सामने। इसके अंदर लश्कर है। ये सोचने वाली बात है कि इस आदमी के अंदर बदरूहों का लश्कर है। इब्लीस, किताबे मुकद्दस में लिखा है कि पहली दफा इब्लीस आकर खुद झुक गया है मेरे यीशु के सामने। उसने आकर सजदा किया है, खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया है। आज हम सजदा करना नहीं चाहते, आज हम क्रियासारी करना नहीं चाहते, हम बरकत सारी लेना चाहते हैं। ये भी कहते हैं दुआओं के अंदर कि खुदावंद हमारे हालात बदल दे, हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए वो कर दे, लेकिन हम अपने चर्च के साथ सिंसियर नहीं हैं। इसके अंदर बदरूहों का लश्कर है। ये किसी एक बदरू को भी पीछे नहीं छोड़कर आया। सारी की सारी बदरूहें खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिरी है। आज हम अपने तौर पर खुद ही फाइट करना चाहते हैं, खुद ही अपने मसलों का हल करना चाहते हैं, लेकिन आपके मसलों का हल बाहर नहीं है, आपके मसलों का हल हैकल के अंदर है। आपके सारे मसलों का हल हैकल के अंदर है। हालांकि इब्लीस कि मैं इस डिब्बा के अंदर मैं सफर करूंगा, मैं किसी दूसरे को अपने साथ बर्दाश्त नहीं करता। उसने पूरी बोगी, एक पूरा डब्बा अपने लिए बुक करवा लिया। उसने बुक करवा लिया, एक पूरा डिब्बा अपने लिए बुक करवा लिया। और एक फाशा औरत जिसका करैक्टर ठीक नहीं था, जिसका माशरे में मियार जीरो था, वो उसके डिब्बा में बैठ गई, वो उसके पास जाकर बैठ गई। अब खादिम लीडर दुआ कर रहा है कि ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। जैसे जैसे वो दुआ कर रहा है, औरत बिल्कुल उसके नजदीक जाती जा रही है। वो दुआ कर रहा है, खुदावंद मैनू बचा, खुदावंद मैनू बचा, खुदावंद मैनू बचा। खुदावंद ने पता क्या कहा? बेवकूफ, दुआ करनी बंद कर, डब्बा बदल, दुआ करनी बंद कर। पास टाइम हम झूठी मूठी की दुआएं कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें ब्लेसिंग किस जगह से मिल रही है। अगर हम डिब्बा चेंज नहीं करेंगे, आज डिब्बा अपना बदलिए। अगर यहां से बरकत नहीं आपको मिल रही, मूव कर जाएं। जहां पर आपकी ब्लेसिंग है, जहां पर आपको बरकत मिल रही है, उस डिब्बा में जाकर बैठ जाइए ताकि आपको बरकत मिल जाए। अब इसके अंदर बदरूहों का लश्कर है। ये चिल्ला रहा है, ये रो रहा है। यीशु के कदमों में गिरा हुआ शख्स है ये। यीशु ने से पूछा कि तेरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल खुदावंद यीशु मसीह ने इसके साथ बात की कि तेरा नाम क्या है। आज बहुत से खादम पता की कर देने, वो बदलूंगा ना इंटरव्यू लेना शुरू कर देंगे है कि नहीं, कित्थों आई है, किन्ने तेन भेजा है, किस तरह निकलेगी, रोटी खानी है कि नहीं खानी। वो बदलू है, उन्होंने जानते, वो एक बदलू है, वो एक डेविल है। उसका इंटरव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। समटाइम हम इस तरह के अल्फाज
कित्थों आई है, किन्ने घल्लिया है, तू ओदा आईडी कार्ड बनवाना है, तू ओदा आईडी कार्ड बनवाना, वो एक बदलू है, उसे जाने दे। हम समटाइम इस तरह के अल्फाज बोलते हैं। यीशु ने उसका नाम पूछा कि बता तेरा नाम क्या है। खादम कहते थे, यीशु ने भी तेरा नाम पूछा सी ना, बताता हूँ कि खुदावन ने उसका नाम किस लिए पूछा था, खुदावन ने क्यों उसका नाम पूछा था, क्यों खुदावन को जरूरत पड़ी थी उसका नाम पूछने की। बताता हूँ कि क्यों खुदावन ने उसका नाम पूछा था। सानू पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि वो खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो लश्करों का रब है, वो तबीब आज़म है, वो खुदाए रापा है, वो खुदाए कदूस है, वो खुदाए सालूस है, वो यहोवा एलोहीम है। उसने पूछा कि बता तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। यीशु से ये बार बार करवाना चाहता था, उस लश्कर को ये बताना चाहता था कि अगर तू लश्कर है तो तेरे सामने लश्कर का रब खड़ा है, तेरे सामने बादशाहों का बादशाह खड़ा है, तेरे सामने खुदाबंदों का खुदा खड़ा है। इसलिए यीशु ने उसका नाम पूछा, इसलिए यीशु ने उसका नाम पूछा। समटाइम हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार यीशु ने भी तेरा नाम पूछा सी, यीशु ने इस वास्ते का नाम पूछा सी। इसलिए यीशु ने उसका नाम पूछा था कि अगर तेरे अंदर लश्कर है, अगर तू लश्कर है तो तेरे सामने लश्करों का रब खड़ा है, तेरे सामने बादशाहों का बादशाह खड़ा है, तेरे सामने खुदाबंदों का खुदा और शख्सियत खड़ी है जिसके कहने से दरियाए शक हो जाते हैं। तेरे सामने लश्करों का रब खड़ा है, इसलिए यीशु ने उसका नाम पूछा। यीशु ने उससे कहा कि ऐ गंदी नापाक स्पिरिट इसमें से निकला। बदलू ने फिर क्वेश्चन कर दिया, खुदा ने यीशु मसीह ने फिर सवाल किया, हम जानते हैं कि तू खादम, तू खुदाबंदों का खुदा है, तू खुदाबंदों का खुदा है, लेकिन हमें असाब में ना डाल, सूरों का होल चल रहा है, हमें उनके दरमियान में भेज दे। हम समटाइम हम ये भी कहते हैं, यीशु ने भी तो फिर बदलवा निकाल नहीं सी ना। नापाक किताबे मुकद्दस में लिखा है कि नापाक चीजों की मिरास नापाक है, नापाक चीजों की मिरास नापाक जगह है। इसलिए यीशु ने उससे कहा कि गंदी नापाक स्पिरिट इसमें से निकल आ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ। और वो सारे का सारा लश्कर सूरों के होल के अंदर दाखिल हो गया और वो करके उसे चपड़ कर झील में जा पड़ा, झील में जा पड़ा। सारा मैसेज, सारी स्टोरी, सारी तमसील एज इट इज जिस तरह से लिखी है मैंने आप लोगों के सामने उसे रख दिया है, उसे बयान कर दिया है, बयान कर दिया है। क्या आज हमें ये सोचने की जरूरत है, क्या हम भी तो नहीं आज झगड़े हुए, हम भी तो नहीं आज झगड़े हुए। अगर झगड़े हुए हैं, अगर गुनाहों के झगड़न का मतलब नहीं है कि बदलू अंदर होने के तो फिर ही बंदा झगड़े। नो 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 नो। गुनाह की वजह से झगड़े हुए हैं, गुनाह की वजह से लोग झगड़े हुए हैं, बुराइयों की वजह से लोग झगड़े हुए हैं। इस जहां के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। आज सवाल ये पैदा हो रहा है कि कहीं हम भी तो नहीं